कि आपके नेटवर्क के जगह पे एक VTH है जिसके सीरीज में RTH आ गया है, उससे हमने उसको रिप्लेस किया है. So are you getting what I'm saying here? Yes. What I mean to say is कि say this is any black box. This is a black box. ये एक black box है. इस particular network को आप एक मिनट. This complete network can be replaced by a single voltage source in series with the resistor, and again you are connecting load to it. ये जो network है ये, that is replaced by a RTH in series with the VTH, and this is your RL. Now please listen to this. In electrical, when we say RL, RL का मतलब होता है load resistor. RL का मतलब होता है load resistor. Your load can be fan, it can be TV, it can be computer, it can be mobile. So load का मतलब क्या होता है in electrical terms? It is nothing but the devices that you're connecting it to the supply. तो जब भी आपको मैं बोलती हूँ ना कि नेटवर्क, आप जब प्लग इन करते हो तो प्लग इन करने के पीछे मतलब आपके जो कंसील्ड वायर्स होते हैं, वो प्लग इन के पीछे जो नेटवर्क है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, इट कैन बी n नंबर ऑफ वोल्टेजेस इन. व्हाट थेवेनियंस इज टेलिंग यू, आप वो n नंबर ऑफ वोल्टेजेस एंड n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को इस सिंगल वोल्टेज इन सीरीज विद द सिंगल रेजिस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो. दैट इज व्हाट योर थेवेनियन इज गिविंग यू दिस प्रोविजन. बट हमें उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट यू विल फाइंड आउट VTH, फिर आप RTH फाइंड आउट करोगे, and then you will connect it in the such a manner that आपका VTH will come in series with RTH, and then again connect your RL to the circuit, and then find out the current drawn by your RL. So we refer that current as IL, and by to find out IL, if I say this is IL, अगर ये IL है तो हमारा IL का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी VTH, दैट इज द टोटल वोल्टेज, डिवाइडेड बाय RTH plus RL. Are you people there with me? Are you people getting what I want to say? Yes, ma'am. Yes, what I'm saying is key, what your Thevenin's is saying that any two terminals of network can be replaced by a single voltage source in series with the resistor, and at that time what you're going to do is, what is a step? ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, मतलब ये तो हुआ थेवेनियन थ्योरम का स्टेटमेंट. माइंड यू माय डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में, वाइवा में भी पूछा जाता है और आपको यूनिवर्सिटी पेपर में भी पूछा जाता है. सो यूनिवर्सिटी पेपर में आपको स्टेटमेंट आता है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन, you are going to state that it states that any two terminals of a network can be replaced by an equivalent voltage source and equivalent series resistance. This is what your Thevenin's theorem. आपको इधर तक ही लिखना है, ये voltage sources obtained ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. Till equivalent resistance you are going to write down the statement. Then you are supposed to draw this diagram as well. आपको ये diagram show करना है कि what is equivalent circuit of Thevenin. If in exam, if in Viva anybody asks you draw Thevenin's equivalent, so Thevenin's equivalent is this. There is a VTH, in series with that there is a RTH, and then there is a load resistor. And what is the formula for IL? IL is nothing but VTH upon RTH plus RL. This is what is your value of IL. ठीक है? Understood what is the concept of Thevenin, everyone? Yes, miss. Now, yes. Yes, I'll tell you, bacha. I'll tell you. Thevenin's theorem states that any two terminal of the network, circuit में कुछ भी रहने दो आपके, you can convert that complete circuit into a single voltage source in series with the resistor. आप पूरे नेटवर्क को सिंगल वोल्टेज सोर्स के सीरीज में RTH से उसको कन्वर्ट कर, मतलब रिप्लेस कर सकते हो. दैट इज व्हाट योर थेवेनियंस इज टेलिंग यू. बट कैसे? व्हाट इज द स्टेप टू बी फॉलोड? whenever you are solving any sum by using Thevenin's theorem, what is to be done? सबसे पहले remove RL. रिमूव RL का मतलब ये है कि वॉट एवर, सी आपको एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल में लिख के आता है ना कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू सो एंड सो रेजिस्टर, तो वो आपका RL होता है. तो आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? रिमूव RL.
देन फाइंड ओपन सर्किट VTH, जो टर्मिनल पे आपने RL को रिमूव किया है उस 2 पॉइंट्स में आप A एंड B लिख दोगे एंड उस 2 पॉइंट पे आप VTH फाइंड आउट करोगे. ठीक है. VTH फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको याद होगा हमने KVL में पाथ कैलकुलेशंस वाले न्यूमेरिकल किए थे, उस मेथड से हम लोग VTH फाइंड आउट करेंगे. थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, वी विल फाइंड आउट RTH. RTH फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, वी विल हैव टू रिमूव RL, जो सर्किट हमको दिया गया है, रिमूव RL, replace voltage source and current source by their internal resistances if it is given. If not, मतलब if internal resistances are not given, you will replace voltage source by short circuit, current source by open circuit. Then you will obtain the value of RTH. Then draw Thevenin's equivalent. Thevenin's equivalent draw करते वक्त आपको क्या करना है, you will draw VTH, उसके सीरीज में you will draw RTH, and then you will connect your RL back to the circuit, and finally you will calculate the value of IL. The formula is VTH upon RTH plus RL. So this is the standard formula that you're going to use for every sum of Thevenin. ओके. सो हमको याद क्या रखना है कि अगर आपको कोई सम थेवेनियन से पूछा है तो आपको ये याद रखना है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है. सबसे पहले you have to find out the value of VTH, RTH, then draw the Thevenin's equivalent, then find the value of IL. So these are the steps that you are supposed to perform in Thevenin's theorem. Are you people there with me? Yes, ma'am. Yes. आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? What is the first step to be done? Steps for Find equivalent resistance. Thevenin's theorem. सबसे पहले you will find VTH. To find VTH, but to find VTH, what is to be done? Remove RL. Remove RL. ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप. आपके सेकेंड स्टेप में you will find RTH. To find RTH, again what you will do, you will remove RL, replace VS, that is voltage source, by SC, that is short circuit or its internal resistance, and replace CS, that is current source, by open circuit or उसके या तो by its internal resistance. Are you people there with me? Are you getting what I'm saying? Yes. Next step, draw Thevenin's equivalent circuit. Draw Thevenin's equivalent circuit. ठीक है. एंड लास्ट स्टेप क्या है, आपको IL कैलकुलेट करना है. यू विल हैव टू फाइंड आउट IL. टू फाइंड IL, तो हमें IL के लिए फॉर्मूला है IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ओके. ये आप हमेशा ही यूज करोगे थेवेनियंस थ्योरम सॉल्व करते वक्त. ठीक है. Should we go for the sums? Have you understood क्या करना है Yes, ma'am. Thevenin's में? Yes, yes. Now we will solve we will see the solved sum first, which is given in the book, and then we will go for the unsolved one. Everybody just pay attention to understand Thevenin in detail. In this sum, what is said, find the current through 10 ohm resistor using Thevenin's theorem. As I said, यहाँ पे कहीं पे भी आपको लिख के नहीं आया होगा कि कौन से मेथड से करना है. सिंस इट इज अंडर थेवेनियन थ्योरम, सो इट इज अंडरस्टूड यू आर सपोज्ड टू सॉल्व इट बाय थेवेनियन थ्योरम. प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स. व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सबसे पहले रिमूव RL. नाउ इन दिस केस RL कौन है ये कैसे पता चलेगा? RL is 10 ohm. Why RL is 10 ohm? Whatever resistance का current is to be find out, we are supposed to consider that as RL. So हमारे इस वाले न्यूमेरिकल में हमारा RL कौन है यहाँ पे? 10 ohm. So remove 10 ohm. So when you see step 1 में हमने क्या किया है? To calculate VTH हमने RL को रिमूव किया. तो ये जो टर्मिनल है, ये जो 10 ohm जब निकाल दिया तो ये पॉइंट ओपन हो जाता है ना. So now you need to find out voltage between this open terminal. A और B के बीच में जो वोल्टेज है वो आपको कैलकुलेट करना है. Have you understood up till this? Yes, ma'am. Yes. Now my question to you is, if I ask you find out the voltage VAB, what you will do in this case? आपको याद आ Mesh रहा है? analysis. Mesh analysis. But आप B से A की तरफ
आप जाओगे तो B से A की तरफ आप जा रहे हो, who all has come in the path of B to A? कौन कौन है? 20 ओम का रेजिस्टर है और 5 ओम का रेजिस्टर है, वो उस पे हमें क्या अप्लाई करना है? KVL. बट डू आई नो वैल्यू ऑफ 20 ओम का करंट? नो मैम, डू आई नो करंट का 5 ओम का करंट? नो. नो. सो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू कैलकुलेट दीज टू करंट. आर यू पीपल देयर? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर? वी आर सपोज टू कैलकुलेट वोल्टेज बिटवीन A एंड B. ये है A प्लस इज A पे प्लस है, B पे माइनस है. So what you are going to do is you are going to apply KVL from B to A. But when you travel from B to A, आप क्या देख रहे हो कि B to A की तरफ जाते वक्त हमारे पास 20 ओम का रेजिस्टर आता है और 5 ओम का रेजिस्टर आता है. So that means I have to find out current flowing through 20 ohm as well as 5 ohm. So हम क्या करते हैं? We find out the currents. Now when you look at the diagram, हम क्या observe कर रहे हैं कि if I say that this is the I1 which is flowing here and this is the I2. Now in this case I2 का direction इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है. हमारे नोट्स में हमने एंटी क्लॉकवाइज लिखा है. इट्स योर कॉल, आपको अगर क्लॉकवाइज लेना है तो भी चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो भी चलेगा. ठीक है, अब जो जैसा सॉल्यूशन दिया मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. इज दैट फाइन? मैं बताऊं क्या वही हिसाब से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now if I ask you what is I1 in this diagram, what is I1? Can I say directly 10 ampere? 10. Yes, Yes, ma'am. है ना? 10. I don't have to calculate. But if I talk about I2 and if I apply KVL in the mesh, हमें क्या दिख रहा है? It is 100 minus 30 I2 minus 20 I2 is equal to 0. So by solving this हमको I2 की वैल्यू क्या मिली है? 2 ampere. Please pay attention my dear students. इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसलिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है. आर यू देयर विद मी? Yes, ma'am. नाउ ये तो मेरे को मिल गया कि 5 ओम के थ्रू कौन सा करंट जा रहा है. what is the current flowing through 5 ohm? I1. What is the I1. current flowing through 20 ohm? I2. So now I have obtained the value for 5 ohm and 20 ohm. Now can I write down VAB? Yes or no? Yes. Now Yes, ma'am. when you are traveling from B to A, आप B to A जब ट्रैवल कर रहे हो, कौन कौन सब देखो, अप्लाई KVL फ्रॉम B to A. यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है. सो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम B to A, सबसे पहली चीज हमें जो नजर आती है वो है 20 ओम. सो यू आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए आप क्या लिखते हो? -20 I2. -5 into I1 I2 सॉरी -20 सॉरी -20 5 लिखा, I2. 20 आएगा. So minus 20 into I2. Then when you travel on this side, you encounter 5 ohm. So you're going from minus to plus. इसलिए you will say plus 5 into I1. If you put the values of I2 and I1, you will get the answer of VAB as 10 volt. But what is your VAB? VAB is nothing but VTH. So first thing हमारे पास आ गया, हमने VTH कैलकुलेट कर लिया. यहाँ तक सबको समझा है? Ma'am, वो एक बार Yes, ma'am. I explain repeat. करो. Yes, I will repeat. What did I say? Whenever you are solving a sum by Thevenin's theorem, what is to be done? You will remove, जिसके थ्रू आपको करंट फाइंड आउट करना है वो आपका लोड रेजिस्टर बन जाता है. इस केस में हमारा लोड रेजिस्टर है 10 ओम. So you will remove this 10 ohm. So when you remove this 10 ohm, it becomes open. So you are supposed to measure voltage between this open terminal. तो ये ओपन टर्मिनल को यहाँ पे मैंने A लिखा, यहाँ पे मैंने B लिखा. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट VAB. VAB इज नथिंग बट VTH. सो व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट VAB, आप क्या देख रहे हो? आप B से A की तरफ जाते वक्त आपको क्या क्या चीजें नजर आती है? B से A की तरफ आपको 20 ओम का रेजिस्टर नजर आता है और 5 ओम का रेजिस्टर नजर आता है. बट अगर मुझे KVL अप्लाई करना है, सिंस आई वांट टू फाइंड आउट वोल्टेज, व्हाट आई हैव टू अप्लाई KVL, इजंट इट? है ना? कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो मुझे KVL अप्लाई करना पड़ेगा. बट KVL अप्लाई करते वक्त आई नीड अ प्रोडक्ट, मुझे वोल्टेज और या तो करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट चाहिए. अब यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू है बट आई डोंट नो द करंट दैट इज फ्लोइंग इन 20 एंड 5 ओम. तो मेरा सबसे पहला क्या काम होगा कि मुझे 20 ओम्स और 5 ओम्स के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है. तो मैंने क्या किया, अब देखो आप लोगों को ये चीज क्यों कंफ्यूज करती है.
आपको ये वाले स्टेप में दो चीजें आप साइमल्टेनियसली करते हो। आप पहले तो बी से ए की तरफ जा रहे हो, ये देखते हो, एंड उस टाइम पे उस बी से ए की तरफ जाते वक्त कौन कौन आया वो देखते हो, और फिर आप उस पर्टिकुलर रेजिस्टर्स के लिए करंट फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम बी टू ए यू सॉ दैट कि आपको 20 ओम का करंट फाइंड आउट करना है और 5 ओम का करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए व्हाट आई डू इज आई अप्लाई केवीएल इन द meshes and I obtain the values. But when I look at the diagram, मुझे क्या नजर आ रहा है, to obtain the value of 5 ohm I can say that कि यहाँ पे directly I get the value of I1 as 10 ampere, isn't it? फर्स्ट लूप में हमारा जो करंट है वो है 10 एम्पियर, सो आई डोंट हैव टू कैलकुलेट, आई डोंट हैव टू अप्लाई केवीएल और मेश एनालिसिस ओवर हियर। बट सेकेंड लूप में मेरा I2 का वैल्यू कैसे आएगा, आई हैव टू अप्लाई केवीएल इन मेश 2. सो व्हेन आई अप्लाई केवीएल इन मेश 2 व्हाट आई गेट इज I2 टू बी 2 एम्पियर. ठीक है, नाउ व्हेन आई ट्रैवल, नाउ ये तो मेरा अभी मुझे 5 ओम और 20 ओम का वैल्यू मिल गया, बट मेरा कंसर्न क्या है, मैं ये सब चीजें क्यों कर रही हूँ, why I am doing all this, because I have to find out the voltage between A and B. A and B के थ्रू कितना वोल्टेज, between कितना वोल्टेज है वो फाइंड आउट करना है. So when you go from B to A, first thing that you encounter is 20 ohm. So 20 ohm में जो करंट जा रहा है वो है I2, and I2 के वजह से यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है. So when you travel from B to A, आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स देयर इज अ फॉल इन पोटेंशियल, सो देयरफॉर इट इज -20, you have -20 into I2. Why I2? Because what is the current flowing in 20 is I2. So -20 into I2, then you're going towards 5 ohm. What is the polarity here? Minus and plus. So you're going from minus to plus. So rise in potential. So that is plus 5 into I1. So your VAB is -20 I2 plus 5 I1. So when you put the value of I1 and I2, you get the answer of VAB as 10 volt. But what is VAB? VAB is nothing but VTH. So VTH हमको मिल गया first step में. अब मेरा next step क्या है? I need to find out RTH. Before I could go ahead, मुझे ये पूछना है, have you understood VTH कैसे आया है? Yes, ma'am. Yes. Yes. Everybody, Riya, is that understood now, बच्चा? Yes, ma'am. Yes. हाँ, now, so now, मैम yes, मैम हम लोग मतलब 30 ओम 100 वोल्ट से भी जा सकते थे ना? हाँ, वो भी 30 ओम चलेगा, 100 वो भी वोल्ट और चलेगा। 5 ओम। वो भी मैम चलेगा। एक बार करके दिखाओ ना। हाँ चलो वो भी बताती हूँ मैं आपको। VAB, देखो मैं आपको पाथ बता रही हूँ। वी आर गोइंग फ्रॉम 30 ओम, 100 ओम, 100 वोल्ट एंड देन 5 ओम। ठीक है, अब I2 की डायरेक्शन 30 ओम में कैसी है कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। जब I2 ट्रेवल कर रहा है 30 ओम में तो वो पोलैरिटी कैसे मार्क कर रहा है, 30 ओम के राइट साइड पे प्लस है और 30 ओम के लेफ्ट साइड पे माइनस है। आर यू पीपल देयर विद मी? आपको समझ रहा है मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes. नाउ when you are going from this path, ये 30, 100 और 5 ओम वाला पाथ यूज करोगे तो ये हो जाता है 30 प्लस 30। वाई प्लस 30 बताओ मुझे, क्यों प्लस 30? Minus to Minus. plus. Yes, minus to plus. So 30 into I2 minus 100, then plus 5 into I1. यहाँ पे मैंने I1, एक मिनट। मैम -5 into I1 आएगा। Why minus बच्चा? मैम क्योंकि Plus 5. I1 ऐसे When you are traveling from, देखो 5 में कोई चेंजेस नहीं है, आप 5 के वही पाथ पे जा रहे हो। यहाँ पे देखो नीचे पोलैरिटी क्या है, 5 के माइनस है ना। हाँ समझा। So you're going from minus to plus, इसलिए there is a rise in potential. So plus 5 into I1. Now put the value of I2 and I1. So 30 into I2. I2 कितना है यहाँ पे? 2 एम्पियर। माइनस 100 कैसे आया, ये सबको समझा है ना? Yes, ma'am. 5 into I1. I1 कितना है अपना? 10 एम्पियर। Now see, put the values. ये हो जाता है 60, 60 minus 100 plus 50. कितना आता है आंसर बताओ मुझे?
आया ना सेम आंसर? हाँ मैम सेम है। आया ना? अंडरस्टूड हाँ, एवरीवन? मैम हाँ, Yes, यस यस। मैम जो पोलैरिटी है ए और बी के ऊपर हम लोग ने एज्यूम किया है क्या, ए हाँ, प्लस और ये माइनस? अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, यस। अगर हम अज्यूम नहीं करेंगे तो हम ये फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे ना बच्चा, हाँ मैम। समझे अच्छा आप? नेगेटिव रहता तो फिर हम लोग का जो एज्यूम किए वो फिर रॉन्ग होता ना, मत मतलब नहीं, ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं। अलग है। अगर तुम देखो, अगर तुमको इस ए को माइनस रखना है और बी को प्लस रखना है, तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग वी ए बी आप बोलोगे वी बी ए। ओके आप मैम। समझे मैं क्या बोल रही हूँ? जब आप हाँ मैम, हाँ। मैंने ये पहले भी बताया था कि जब आप वी ए बी बोलते हो, इसका मतलब होता है कि ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। जब आप वी बी ए बोलते हो तो उसका मतलब होता है कि बी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, सॉरी बी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। समझा आपको? ओके मैम। हाँ मैम, Yes or तो no? हम एज्यूम कर सकते हैं ना कोई भी यस पोलैरिटी? यस, इट्स योर कॉल, इट्स कम्प्लीटली योर कॉल। बट नॉर्मली हम लोग क्या ओके मैम। करते हैं कि लेफ्ट, मतलब अगर ऐसा सर्किट है तो हम लोग लेफ्ट साइड पे प्लस और राइट साइड पे माइनस रख के चलते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर कॉल कि कैसे करना है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, मैम अंडरस्टूड? हम शुड आई? यस बोलो। मैम हम लोग जब वी ए बी लिखते हैं तो हम लोग स्टार्ट बी से करते हैं ना? बी से ए की तरफ जाते हैं हम लोग। हाँ, ऐसा क्यों मैम? मतलब कुछ है क्या? मतलब ये ऐसा कुछ नहीं, ये आपको इजीली लिखने को मिले ना इक्वेशंस, इसलिए मैं बताती हूँ। आप ए टू बी भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर वही मिलने वाला है। अच्छा ऐसा है, ओके। हाँ, आंसर वही मिलने वाला है। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको मतलब इजीली मतलब समझे, इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट आरटीएच। हमने एक पार्ट कंप्लीट किया, now we will calculate RTH. So when you calculate RTH, what is to be done? Please pay attention everyone. What is to be done in the circuit? सबसे पहले you will remove RL. आप RL को रिमूव कर दोगे, आप करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे और आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे। तो व्हेन यू सी द डायग्राम मॉडिफाई होके ये कैसा हुआ, देखो हमने RL को निकाला तो यहाँ पे ओपन टर्मिनल हो गया, यहाँ पे जो करंट सोर्स था इस साइड पे वो निकल गया तो वो ओपन बन गया, और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था उसको रिप्लेस किया शॉर्ट सर्किट से। हैव यू अंडरस्टूड ये डायग्राम कैसे आया है एवरीबॉडी? हाँ, Yes, ma'am. नाउ यू आर व्यूइंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड। देखो ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप इस तरफ से रेजिस्टेंस को देख रहे हो। तो जब आप इस तरफ से रेजिस्टेंस को देख रहे हो, so can I say that this 30 and this 20 are in parallel? Yes, ma'am. यस मैम। ये 30 और ये 20 पैरेलल में है एंड इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 5 के सीरीज में है। आर यू पीपल देयर विद Yes, मी? आपको समझ Yes, रहा है सबको? Yes, I'll just ma'am. remove this खिचड़ी from here. What I said is, when you are viewing resistance from this end, I say that this 30 and this 20 are parallel and their parallel combination is in series with 5 ohm. So when you calculate this, you get the answer as 17 ohm. So now you have got the value of RTH, you have got the value of VTH to be 10 volt. Now draw Thevenin's equivalent. So Thevenin's equivalent draw करते वक्त हमें क्या करना है? हमें VTH बनाना है, हमें RTH बनाना है, एंड जो लोड रेजिस्टर हमने निकाल दिया था उसको लगाना है। So this is VTH, दिस इज RTH, दिस इज RL। हमारा VTH कितना है? 10 वोल्ट। हमारा RTH कितना है? 17 ओम। हमारा RL कितना है? 10 ओम। नाउ वी विल फाइंड आउट IL। IL का फॉर्मूला इज, the formula for IL is equal to VTH upon RTH plus RL. Put the values and get the answer. So when you put the value, you get the answer of IL as 0.37 ampere. Have you people understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, just give Yes, me a ma'am. moment. I'll have some water. 1 minute. Drinks Should break. we go for the next sum? Yes, ma'am. Okay, great. Now the unsolved sum from your book. Everybody refer example 2 in your book. We are supposed to find out current flowing through this 1 ohm
using Thevenin's theorem. Okay, now देखो कभी भी एक चीज याद रखो, जब आपको Thevenin's theorem से सम सॉल्व करना है तो आपको क्या क्या चीजें करनी है. पॉइंट्स टू बी नोटेड. फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड आउट VTH. VTH फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, रिमूव RL. फिर VTH ऑब्टेन करने के बाद आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा, फाइंड RTH. RTH फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, रिमूव RL, replace voltage source by short circuit, replace current source by open circuit, and then find out RTH. Third step, draw Thevenin's equivalent. Fourth step, find IL. IL is equal to VTH upon RTH plus RL. Now we will solve this sum by using these steps. So in this sum, we are supposed to find out current flowing through 1 ohm. So in this case, your RL is nothing but 1 ohm. So we will remove RL to first step. This is step 1. So your step 1 says that to find VTH, what is to be done? Remove RL. ठीक है. So जब आप RL को रिमूव कर देते हो, you get this open terminal. ये हो गया आपका open terminal. You mark this as A, you mark this as B. ये है प्लस, ये है माइनस. This is what is your VTH or VAB. You are supposed to find out VTH. So VTH is equal to VAB. Now my question to you is, when you are traveling from B to A, कौन कौन चीजें आपके पाथ में नजर आती है? You will see this path. Who has come in the path of B to A? कौन कौन है? 4 volt and 2. 4 volt and 2 ohms. So I have to only find current for whom? 2 ohm. 2 ohm. अभी कुछ लोगों को लगेगा कि मैम why don't we go by this path? क्या मैं ये सेकेंड पाथ यूज कर सकती हूँ, ये वाला? Yes, right. जो लोग यस बोल रहे हैं उनको मेरा ये सवाल है, कैन आई अप्लाई KVL ऑन द पाथ इफ देयर इज अ करंट सोर्स? क्या मैं इस पाथ पे KVL अप्लाई कर सकती हूँ? करंट सोर्स किया है मैम. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप B से A की तरफ जाते हो, आप KVL अप्लाई करते हो, कैन यू अप्लाई KVL फॉर दिस? नो नो मैम. मैम. नो. तो आपको बोलना है कि देयर इज ओनली वन पाथ. दिस पाथ इज नॉट वैलिड क्योंकि यू कैन नॉट अप्लाई KVL ऑन दिस पाथ ना. अंडरस्टूड एवरीवन? यस. है ना? गॉट इट? यस मैम. So now we need to only find out current flowing through 2 ohm. Everybody just pay attention. Have you understood हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ? Yes. So if you travel from A to B, you can see there is a 4 volt का voltage source and there is 2 ohm का resistor. Now look at the diagram. If I consider this as node A, I say that 3 is entering, 4 is entering. What will be the current in this branch then? 5. हाँ? 5 के 4. बच्चा see diagram. Everybody just pay attention. Are Ma'am, you there? 4 ohm. 4. 4 ampere. Yes. Isn't it everyone? 4 ampere जा रहा है कि नहीं 2 ohms में? Hello people. Yes, Are you ma'am. there with Yes, me? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Current is entering. Both the currents are Yes, entering ma'am. towards this Alive है. branch. देखो आप, अगर आप, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना इसको इरेज कर देती हूँ. शायद आप लोगों को इतना सारा चीजें यहाँ पे बनाया है इसलिए आपको खिचड़ी लग रहा है. मैं आपको बोल रही हूँ इस पॉइंट पे, on this point, 3 is entering, also 1 is entering. So ये जो ब्रांच है, जो 3 का ब्रांच है, जो 3 में करंट फ्लो होगा 2 में फ्लो होगा, है या नहीं? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. So Yes. what is, अगर 3 ohm में 4 एम्पियर जा रहा है, so what is the current in 2 ohms? 4 ampere. 4 4 एम्पियर. ampere. Now my next question to you is, पोलैरिटी क्या होगी? प्लस किधर आएगा, माइनस किधर आएगा? 2 के राइट साइड पे क्या है? Plus I. Right. वेरी गुड. एवरीबॉडी, डिड यू गेट दिस? 2 ohm Yes. के राइट Yes, साइड yes. पे प्लस और लेफ्ट साइड पे माइनस. Minus. अंडरस्टूड एवरीवन?
Yes, 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 ma'am. ma'am. yes, ma'am. मैम ये वाला नहीं समझा मैं पोलैरिटी। आई रिपीट, सी मैं क्या बोल रही हूँ आपको, इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे 3 एंटर कर रहा है और 1 भी एंटर कर रहा है ना। सो इस ब्रांच में करंट क्या होगा, ये वाले 3 ओम्स में क्या होगा, एक मिनट इसको मैं 4 एम्पियर है ना, 4 एम्पियर होगा कि नहीं। अब ये अगर इस वाले 3 एम्पियर में 3 ओम में 4 एम्पियर जा रहा है, क्या 2 ओम में भी वही करंट जाएगा, ये ओपन है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा करंट 2 ओम में जाएगा, है या नहीं। यस मैम। सो कैन आई से दैट 2 ओम में 4 एम्पियर जा रहा है, यस मैम। तो ये हुआ 4 एम्पियर। बट पोलैरिटी कैसी होगी, अगर करंट ऐसे एंटर कर रहा है, मतलब ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, यस और नो, अंडरस्टूड, पक्का। हाँ मैम समझ गई। Now we will apply KVL on the path of B to A. So when you go from B to A, first thing that you encounter is what? 4. It is plus 4 या minus 4? Plus. 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 Plus 4. Everybody. Yes. Plus 4. Yes, it is plus 4. Why? Because you are going from negative terminal to Negative to positive. positive. So 4, फिर आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, सो इसलिए प्लस 2. What is the current flowing into? 4 ampere. 4 ampere. 2 into 4. So 4 plus 8. So VTH is how much? 12 volt. 12. Everybody got it? VTH कैसे आया? Yes, ma'am. Yes. Now, next step is to calculate RTH. Now, to find RTH, हमको क्या करना है? Remove RL, replace वोल्टेज सोर्स, अभी मैं VS लिखती हूँ वोल्टेज सोर्स को, रिप्लेस VS बाय शॉर्ट सर्किट एंड CS दैट इज करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट। आई होप ये शॉर्ट फॉर्म्स आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने आपको क्या बोला कि जब आप लोग RTH फाइंड आउट करते हो तो आपको RL को रिमूव करना है, तो आप 1 ओम को निकाल दोगे, आप इस 1 एम्पियर को ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे, इस 3 एम्पियर को ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे और इस 4 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे। सो व्हेन यू डू दैट इन द सर्किट, आपका डायग्राम ऐसा बनता है। अब आपको RTH जो है वो यहाँ से व्यू करना है। दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू व्यू योर RTH. Now this is a tricky one. My question to you is, what will be RTH for this? ये हमने ऐसा एक किया था सम जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था। My question to you is, what is RTH? 2. Everybody 2 ohms? Yes. Pakka? Only Vala is saying 2 ohms. 2 ohm है। Yes, ma'am. 2. 2 ohm. It is 2 ohm because जब आप यहां से देखते हो तो सिर्फ 2 ohm नजर आता है आपको, है ना, गॉट इट, इसलिए सिर्फ 2 ohms। बट अगर आप यहां से व्यू करते हैं तो क्या आता है RTH, मुझे बताओ। 0. हाँ, 0 कैसे, Open कैसे circuit open complete बचेगा? होगा। ये देखो ना, यहां से व्यू करोगे तो ये सब आएगा ना, ये 3 और 2 कंबाइन हो जाएंगे ना, 5 ohm. 5. अंडरस्टूड ना। वैसे ओके ओके हाँ, ओके। ये याद रखो, जो जहां से व्यू कर रहे हो ना वो बहुत मैटर कर रहा है। बट हमारा जो रेजिस्टर, जहां पे आपका लोड रेजिस्टर है, आप वहां से व्यू करते हो, तो ये लोड रेजिस्टर है, इसको निकालने के बाद आप यहाँ से व्यू कर रहे हो, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस हियर? Only 2 ohms. So your RTH is 2 ohms. Everybody understood little tricky part here. Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. एक और बार। Yes, I ma'am. repeat. See, जहां पे आप लोड जहां से निकाल रहे हो ना, वहां पे आप RTH व्यू कर रहे हो। तो हमारा जो लोड रेजिस्टर है वो इस पॉइंट पे था, हमारा जो 10 ओम है वो यहाँ पे था, तो हमने 10 ओम को निकाल दिया और यहाँ से हमने RTH व्यू किया। तो हम यहाँ से व्यू करें तो हमको कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस तरफ कितना रेजिस्टेंस दिखता है? सिर्फ 2 ओम है या नहीं? Yes. समझे आप? Yes, ma'am. सो RTH 2 ओम है और VTH जो है वो है 10 वोल्ट। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ थेवेनियंस इक्विवेलेंट। ड्रॉ थेवेनियंस इक्विवेलेंट सर्किट। This is our next step. That is the third step. So
थेवेनियंस इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास सबसे पहले ये स्टैंडर्ड डायग्राम है. दिस इज योर VTH, दिस इज योर RTH, दिस इज योर RL. ठीक है. सो हमारे केस में हमारा VTH का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट, RTH की वैल्यू कितनी है हमारी 2 ओम, 2 ohm, RL कितना है 10 volt. 10 ओम्स. 10 है ना कि 1 है? 10 है कि 1 है? 1 है. 1 है 1. सबको भूख लगी है ना? है ना? नो मैम. नहीं लगी है भूख? सॉल्व कर रहे हैं. लगी है. नो मैम. अच्छा सॉल्व कर रहे, भूख भी लगी है ना, तो इसलिए मैम बता रहे तो आधा खा रहे आप लोग. चलो, IL इज इक्वल टू नो मैम. फॉर्मूला क्या है बताओ. चलो देखते हैं कितने लोगों को याद है. IL इज ETH upon Yes. 10 upon 2 VTH plus 1. upon RTH RTH plus RL. So 10 upon 3. Why 3? क्योंकि 2 plus 1. So that is 10 by 3. So what is the answer? 3.3. 3.33. Actually ये 10 या 12 12 है, miss. 12 है. 12 था ना? 12 है, Actually, मैम, हाँ, 12 मेरे को है, लगा हाँ. ही मैंने कुछ तो गड़बड़ की. Okay. So this is 12, हाँ? Not 10, sorry. So this is मुझे भी 4. भूख, देखो मुझे भी भूख लगी है इसलिए मैम ने भी खा लिया. Okay, jokes apart. So this 4. is 12 and answer is 4 ampere. 4. Understood everyone? सबको समझा है? Yes. Keep with me. Are you doing it? मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे चीजें काम Yes, हो ma'am. रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Should we go for the next one? मैम Yes, ma'am. हाँ बोलो बच्चा बोलो. मैम जरा वो क्वेश्चन दिखाना ना. यही वाला जो अभी किया वो. हाँ मैम. हाँ इसको मैं मैंने जो सॉल्व किया वो वाला दिखाऊं. हाँ मैम. हैंड रिटन नोट्स. मैम 1 मिनट क्वेश्चन दिखाओ ना इसका. ये देखो ये क्वेश्चन है. मैम इधर मैंने मतलब उसको रिप्लेस किया ओपन सर्किट से. किसको? मतलब 1 ओम रजिस्टर से हम लोग को निकालना था ना करंट. हाँ तो मैम उसको हटा के पॉइंट मार्क करने का ना. हाँ. तो मैम मैंने पॉइंट मार्क किया. फिर मुझे ऐसा लगा कि मैश एनालिसिस लगाना चाहिए. VTH के लिए. नो मैम करंट निकालने के लिए ऐसा हाँ लगा वही मुझे. तो आप लगा सकते हो, मैश एनालिसिस कर सकते हो, बट देयर इज नो नीड ना बच्चा. अच्छा. आप देखो ना आपका काम सिंपल हो रहा है ना. आप यहाँ पे अगर आप KCL अप्लाई करते हो तो भी आपको 2 ओम का करंट मिल जाता है ना. आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ मैम. मैम पर लगाएंगे तो कुछ अगर आप लगाते हैं ना तो एक पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 2 ही लूप्स है. हाँ. बताओ क्यों मैं 2 लूप्स बोल रही हूँ? मैम एक ऊपर का है और एक नीचे. हाँ. और अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम करेंगे ना, हाँ. ये वाले लूप में -3 एम्पियर बोलोगे आप अगर आप क्लॉकवाइज बोल रहे हो तो. यस मैम. एंड ऊपर वाले इसमें क्लॉकवाइज के हिसाब से 1 एम्पियर है. यस मैम. तो देखो इससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ रही है अननेसेसरी. डिड यू सी दैट? एंड Yes, पहली ma'am. बात तो ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी बताओ मुझे. यहाँ पे करंट सोर्सेज है तो आप लोगों को यहाँ पे KVL अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि नहीं बताओ मुझे. यस कर सकते हो क्या कोई नहीं भी? मैम. हाँ इसलिए हमने क्या यूज किया, KCL यूज किया. यस मैम. समझा आपको? हाँ मैम. अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम. This mesh analysis only in this sum we are not using or all the time we are No, not no. Only this sum, because in this sum हमारा पर्पस KCL से हो गया था सॉल्व, इसलिए we didn't go for mesh analysis. Okay. Remember that Thevenin's में you can use source transformation, you can use star delta, you can use KCL, you can use KVL, you can use nodal analysis, anything you can use to find out that. मैम Yes बोलो. मैम इसमें स्टार डेल्टा कैसे होगा? इसमें नहीं, मैं ये बोल रही हूँ जरूरत पड़ी तो. इसमें स्टार डेल्टा की जरूरत ही नहीं है ना. हाँ मैम. समझे? जिस सम में जरूरत है, अभी ये सम में नहीं है बट आगे के सम्स है जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी. ओके अच्छा मैम. should I go for the next one?
Yes, Ma'am. ma'am. do a question in which there's mesh analysis. क्या सॉरी? Do a question in which there is mesh analysis. Yes. Ma'am. With your permission, sir, Valay sir, I am doing it. मैम Okay, yes. Tell me, बच्चा बोलो. मैम जब आप आरटीएच निकाल रहे थे तो उसका डायग्राम दिखाओ ना जरा। ये वाला जो मैंने अभी ड्रॉ किया वो के जो हैंड रिटन नोट्स है वो? नहीं मैं ये जो अभी आपने ड्रॉ किया। ये वाला? हाँ ये मैम, वाला? इसमें। देखो। हाँ मैम। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब हम लोग बी से ए जाते हैं तो हमारे पाथ में अगर ये ओपन सर्किट जैसे है ये हाँ वो आ जाता है तो रेजिस्टेंस 0 ना? तो 0 तो वहां पे आप वीटीएच अप्लाई ही नहीं कर सकते ना। मैम मैं आरटीएच की बात कर रहा हूँ। तो आरटीएच में करंट और वोल्टेज आता ही कहाँ है पिक्चर में बच्चा? अच्छा मैम तो आपने जो आपने 3 ओम को यही वाले डायग्राम अभी मैंने ये जो शो कर रही हूँ आपको स्क्रीन पे, जब आप यहाँ से रेजिस्टेंस व्यू कर रहे हो तो Yes, आपको ma'am. रेजिस्टेंस कितना नजर आ रहा है? एक ही मैम। 2 ओम, सिर्फ 2 ओम, यस मैम। है ना? बट अगर मैं वो जगह पीछे कर दूं, 3 के एंड से देखूं तो मैं आपको पूछती हूँ कितना रेजिस्टेंस नजर आता है, तो आप क्या बोलते हो? 5 ओम। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस सेक्शन से, इसलिए 2 ओम ओनली। आप समझे मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। ये ना, ये अगर आप यहाँ पे मैं आपको ना थिंग इज, हम लोग ऑफलाइन अगर होते ना मैं आपको ये चीज और अच्छे से बता सकती थी। ठीक है, आप लोग रेलवे का, आपको पता है रेलवे के लोग कैसे ट्रैक चेक करते हैं? वो लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो जिस पॉइंट पे खड़े होते हैं वहां से वो लोग मतलब वहां पे वो लोग चेक करते हैं रेजिस्टेंस। तो उनके लिए जहां पे वो खड़े और जहां से उन्होंने शुरू किया था उधर तक का रेजिस्टेंस मेजर होता है। मान लो फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम बोरीवली टू चर्च गेट, आई हैव स्टार्टेड माय कैलकुलेशन फ्रॉम बोरीवली टू चर्च गेट। मैंने बोरीवली पे शुरू किया, मैं मलाड पे पहुंची, मैंने वहां तक का रेजिस्टेंस किया। नाउ योर रेजिस्टेंस इज विथ रेफरेंस टू व्हाट? बोरीवली टू मलाड। आपके मलाड के आगे के रेजिस्टेंस क्या है उसको उससे कुछ लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वो मलाड से व्यू कर रहा है रेजिस्टेंस अप टिल बोरीवली। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहा है या नहीं? बाउंसर जा रहा है? समझ रहा है। हाँ। अब अगर आप आगे बढ़ते हो, आप सांता क्रूज जा रहे हो, तो आप सांता क्रूज तक का रेजिस्टेंस देख रहे हो। कहाँ से कहाँ तक? बोरीवली टू सांता क्रूज। सांता क्रूज के पीछे क्या है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। समझे आप? देन रेजिस्टेंस इज गोइंग टू चेंज ना, बट व्हेन यू आर कंसीडरिंग from point of view of Santa Cruz, your resistance is going to change. Did you get that? Yes, ma'am. आई एम यूजिंग दिस मेथड बिकॉज अब हम ऑनलाइन है, इसलिए मुझे ये चीजें ऐसी आपको बतानी पड़ रही है। बट आई होप व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इट इज अंडरस्टूड। यस और नो? Yes. चलो, I'll go Yes. for the sum as per Valay sir's request. I will go for mesh analysis वाला part. ठीक है? Yes. Yeah. Okay. Now we are solving example number 4 from your book. This is a very good example of a star delta as well as mesh analysis. So इति का भी डिजायर फुलफिल होगा कि कहाँ पे स्टार डेल्टा यूज हो रहा है, और वलय का भी इच्छा पूरा हो जाएगा कि किधर मेश एनालिसिस यूज हो रहा है। नाउ प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, वी आर सॉल्विंग एग्जांपल 4 फ्रॉम योर क्लास वर्क सेक्शन। एवरीबॉडी पे अटेंशन। ओके, आपको दिख रहा है ना एग्जांपल 4 आपके बुक में है? हाँ, yes. Yes, Now ma'am. here you are supposed to find out current flowing through 20 ohm using Thevenin's theorem. So what is to be done? You will remove 20 ohm first of all, because RL is what in our case this is 20 ohm, है ना? RL यहाँ पे 20 ohm है, तो हमने 20 ohm को निकाल दिया and हमने redraw किया डायग्राम। So first step is to remove RL and find VTH। ठीक है? सो व्हेन यू फाइंड VTH, आप क्या देखते हो कि यहाँ पे सर्किट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं? इफ आई ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, कैन आई से दैट ये जो दो रेजिस्टर्स है 8 ओम और 7 ओम, कैन आई से दैट दे आर इन सीरीज? Yes. Yes. Yes, ma'am.
Yes. Also 21 or 15, can I say that they are in series? Yes. ओके Yes. तो ये बन गया मेरा 15 ओम, दोनों का सीरीज ऐड करके हो जाता है 15 ओम, है ना, इजंट इट? एंड ये दोनों को ऐड करने पे ये बन गया मेरा 36 ओम्स. नाउ कैन यू सी दिस डायग्राम? अभी यहाँ पे दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट. अभी ये सम को आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है? अभी यू नीड टू फाइंड आउट वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी. नाउ जब आप बी से ए की तरफ ट्रैवल करते हो तो आपको क्या नजर आता है? यू हैव 36 ohm into the picture, you have 40 ohm into the picture, and you have 15 ohm into the picture. So what is to be done by you? You need to calculate current for 36, 40 and 15. So one way is what? अगर आपको स्टार डेल्टा नहीं यूज करना है तो आप क्या करते हो? You say this is loop 1, ये आपका loop 1 है I1. एक मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच करती हूँ डायग्राम को सो दैट आप लोगों को यहाँ तक सबको समझा है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट. हाँ, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा वापस से. नाउ व्हाट डिड आई डू हियर इज, इसका हमने सीरीज फिर से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे. ये 15 ओम है और ये है हमारा 36 ओम. नाउ इफ यू डोंट वांट टू यूज स्टार डेल्टा, जिसको स्टार डेल्टा नहीं यूज करना है वो ये कर सकता है, और जिसको स्टार डेल्टा करना है मैं वो भी बताऊंगी और बिना स्टार डेल्टा के बताऊंगी. सही बात, दोनों का पेट भरेगा. Here you need to find out B to A के पाथ पे जो भी लोग आ रहे हैं उनका करंट फाइंड आउट करना है. आपको 36 ओम का करंट फाइंड आउट करना है, आपको 40 ओम का करंट फाइंड आउट करना है एंड 15 ओम का करंट फाइंड आउट करना है. तो by mesh analysis I say that current flowing in this loop is I1. Now look at this, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको. Look at this, this is your loop 2. यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो है I2 और and this is your loop 3. You want me to continue with this mesh analysis or you want me to modify this into a smaller diagram? Ma'am, modify it. छोटा Yes. कर लेते हैं. हाँ, yes. ओके ग्रेट, चलो. बट ये भी एक ऑप्शन है. ओके आप हाँ, इसको yes. ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? नाउ मैं आपको अभी दूसरा मेथड बताऊंगी. You will convert this into you will reduce this circuit first of all. तो अगर आप देखोगे there are two deltas. This is a delta 1 which is formed because of 15 ohm and this is the second delta which is formed because of 36 ohm. तो ये दोनों के बीच में से यहाँ पे एक रेजिस्टर आएगा, ये दोनों के बीच में से यहाँ पे एक रेजिस्टर आएगा और यहाँ पे एक रेजिस्टर आएगा. सिमिलरली ये दोनों के बीच में से there will be one of the resistor over here. यहाँ पे एक रेजिस्टर और यहाँ पे एक रेजिस्टर. मैं यहाँ पे ना अल्फाबेट्स डाल देती हूँ सो दैट आपको समझे मैं क्या कर रही हूँ. दिस इज पॉइंट C, दिस इज D, E, इसको F, दिस इज O and this is N. ठीक है? Now please pay attention everyone. I hope you are listening to me. Yes, yes. Yes. Now Yes, ma'am. Now we will redraw this diagram. Between CO there is a resistor जिसकी वैल्यू 5 ओम होगी बिकॉज ये सारे एक ही वैल्यू के हैं तो वी कैन यूज दैट कॉन्सेप्ट. डिवाइड बाय 3, सो 15 डिवाइड बाय 3 इज 5 ओम. सो दिस इज 5 ओम. C और O के बीच में 5 ओम. फिर O और D के बीच में जो है एक रेजिस्टर है वो है 5 ओम. फिर O और A के बीच में जो रेजिस्टर है वो है 5 ओम. ठीक है? फिर D और E के बीच में वी हैव 40 ओम. Are you people there? You are getting up till now? Yes. यहाँ तक सबको समझ Yes, में आया? ma'am. This is 40 ohms. ठीक है? Then you have E और N के बीच में you have this वाला डेल्टा जिसको हमने कन्वर्ट किया स्टार में. So जो वैल्यू हो जाती है 18. 12. Sorry 12. Sorry 12. 12. Sorry 12 and this is N. Sorry. This is N. Now N और F के बीच में you have one more 12 ohm. Then here between B to N there is again 12 ohm.
This is your B point. This is plus, this is minus. Now आपका जो बाहर का जो 100 वोल्ट है वो अभी भी पिक्चर में है ना. Now can I say that these three are in series? Yes, ma'am. Yes. So when you combine that, आपका ये Yes, ma'am. तीनों भी एक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वैल्यू हो जाती है 57, isn't it? 5, see, Yes, 40 ma'am. plus Yes, 12 ma'am. is 52, Yes. 2 plus 5 is 57. So this is 57 ohms. ये है आपका पॉइंट O और ये है पॉइंट N, जो कंबाइन होके बन गया 57 ओम. अब ये है आपका O to A जो कि है 5 ओम, ये है आपका N to B जो कि है 12 ओम, ये है आपका B, ये है आपका A. Then between CO we again have 5 ohm and over here between N and the voltage source we have 12 ohm. ठीक है. Now please pay attention. This is, it's easy. अगर हम ऑफलाइन होते तो और अच्छे से आपको समझता, but I will try my level best to make it very clear in online as well. Please pay attention. ये डायग्राम आपको समझ में आया है? मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ये जो तीनों रेजिस्टर्स है उनको कंबाइन करके एक में कन्वर्ट कर दिया. ये 5 जो स्लांट पोजीशन में थे उसको मैंने वर्टिकल पोजीशन में डाल दिया और ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया. अंडरस्टूड एवरीवन? ये डायग्राम समझा है या नहीं? Yes, ma'am. समझा मैम. Yes, ma'am. थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग. यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बोलती हूँ अप्लाई KVL टू दिस लूप, तो क्या वैल्यू आती है I की? क्या आएगा I? बताओ. -5. बिफोर यू कुड राइट, इस 5 और इस 12 में कोई करंट जा रहा है? No. नहीं. No, है ना? So can I directly say that 100 divided by 5 plus 57 plus 12? Can I say that? Yes, ma'am. Everybody, Yes, ma'am. did Yes, you get ma'am. that? This is the total voltage, and what is the total resistance then? 5 plus 57 plus 12. So 100 divided by 5 plus 57 plus 12. So what is the answer? आप मुझे बताओ. कैलकुलेट करो कैलसी पे और बताओ मुझे जल्दी से. 1.351. 1.351. So I will take 1.35 ampere. Now everybody, सबको I समझ में आया? क्या कैसे आया है I? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now just pay attention here. मेरा कंसर्न क्या है? ये सब मशक्कत मैंने क्यों की? बिकॉज मुझे VTH कैलकुलेट करना है, दैट इज VAB. अब जब आप VAB कैलकुलेट कर रहे हो, you travel from B to A. What all things have come into the picture? ये 12 ohm, ये 57 ohm और ये 5 ohm. But before you could say कि 5 or 12. But is there any current flowing in 5 and 12? No. Yes or no? No, ma'am. No, ma'am. तो आप सिर्फ किसको बोलोगे? सिर्फ 57, है ना? Yes or no? Yes. हाँ. So अब ये I जो है, I जब 57 में ट्रेवल कर रहा है, so it is going to mark positive sign over here and negative sign over here. So if I ask you, tell me what is VAB, तो आपका जवाब क्या है? You are going to travel from B to A. Your answer is -51. नहीं, माइनस नहीं बच्चा. Plus 57. Plus 57. Plus 57 into I. Okay, हाँ. Isn't it? So 57 into 1.35. What is the answer? $76.95. Yes. Before I could go ahead for RTH calculation, have you understood this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Akka. Yes, yes. Now, समझा? Yes, वाला ma'am. you get it? यहाँ पे हमने Yes, yes. not exactly mesh को करना होता तो तुम पहले वाले मेथड से कर सकते थे. स्टार डेल्टा करके ये करना है आपको. हाँ, Got it now? Now you have obtained VTH. अभी हमारा next part है to find RTH.
हमें RTH कैलकुलेट करना है। देखो RTH कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज दिस सर्किट, अभी जो फिलहाल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ना, वही चीज आप आगे फॉरवर्ड करके यूज कर सकते हो, बिकॉज आपने इसी सर्किट को कन्वर्ट किया है ना। सही समझे बात आपने क्या बोल रही हूँ? सही बात डिड यू मैम। गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. सो वी विल यूज दिस सर्किट, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ ना, ये वाला ही डायग्राम आगे हम लोग यूज करेंगे। बट व्हाट यू विल डू इन दैट केस, यू विल रिप्लेस, अभी RL तो ऑलरेडी रिमूव्ड है यहाँ पे, है ना, इस वाले सर्किट में RL ऑलरेडी रिमूव्ड है। बट व्हाट इज द न्यू थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू टू फाइंड आउट RTH? यू विल रिप्लेस 100 वोल्ट बाय शॉर्ट सर्किट, है ना। सो व्हेन यू रीड्रॉ द डायग्राम, अब आपका यहाँ पे है 5 ओम, यहाँ पे है 57 ओम, यहाँ पे है 12, सो 5 नहीं था 5 सीने में तेरे 57 ohm and मुझे 12 थी ohms, बता ठीक है। And here क्या you have, हाल हो गया this is है point ये A, मेरा here you have point B, आंखें मेरी this is the value 5, this is the value 12, and हर आपने जगह 100 volt को short कर दिया। ढूंढे Now तुझे you are viewing resistance from this side, बेवजह your RTH is viewed from this side. My ये question to you मैं is, हूँ या अगर मैं इस वाले शॉर्ट वायर को ऊपर डाल दूं तो चलेगा क्या? Yes, ma'am. हाँ, yes. है ना। सो नाउ व्हेन आई रीड्रॉ दिस डायग्राम, तो कैसे बनता है, यहाँ पे आपका 57 ओम, ये है आपका 5 ओम, ये है आपका 12 ओम, एंड यहाँ पे आ गया आपका 5 अच्छा हाँ और हाँ 12। सही बात वो सीरीज में है कि नहीं, है भाई। है कि नहीं? Yes, yes. Yes, ये yes. 5 और ये 12 सीरीज में, तो उसको अगर मैं ऊपर डाल देती हूँ तो ये दोनों ऐसे दिखेंगे। सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन से इज कि 17 is in parallel with 57, isn't it everyone? अब फिर से Yes, जब Yes, ma'am. बारिश होगी तेरी याद So this is 5, this is 12, 17 inverse और 57 inverse क्या आता है मुझे बताओ? You are viewing resistance from this end, हाँ? आप इस साइड से रेजिस्टेंस व्यू कर रहे हो। 0.07 सो RTH क्या बेटा 0.07 कैसे आएगा? 13.09. हाँ तो ये इनवर्स नहीं है। 13.09. हाँ सो Yes, ma'am. लाल 13.09 करवा लिया। एंड देन अब बताओ आगे क्या आएगा, क्या करना पड़ेगा? ये और तीनों yes, series में. exactly. So 5 plus 13 plus 12 will give me RTH. So RTH is equal to 5 plus 13.09 plus 12. So this is 30.09. 30.09 ohms. So now we have got the value for RTH as well as VTH. So next step is draw Thevenin's equivalent circuit. लॉल हो गया कैसे किया? ठीक है, Thevenin's equivalent मैं circuit. बारिश तो हमारा की बोली VTH कितना था? समझता 76.95 नहीं volt. था। This is our VTH. हवाओं हमारा से RTH मैं कितना यूं है? RTH is उलझता नहीं 30.09. था। Draw your सीने RL में जो कि तेरे 20 ohm था, बराबर? मुझे RL थी is 20. बता Now what is the formula for IL? IL is क्या equal to हाल VTH हो upon गया RTH है ये plus RL. मेरा। Put the value and tell me the answer. हर जगह 1.51. 1.51. Sure? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Understood everyone? मैं एक काम करती हूँ, मैंने जो हैंड रिटन वाला है ना वो भी एक बार दिखा देती हूँ। क्या हाल Have you हो understood? गया है देखो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है। See, आंखें can you see this on the screen? मेरी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ सोच के Okay? बोला होगा तूने। Have you understood? I have a meeting at 2:30. Yes, ma'am. Take a lunch. If you have understood, I will close the session. We will, if you want, I will continue with Thevenins in the next lecture as well. No, miss.
No, not required. Sure. But one tricky sum. Yes, Just ma'am. to One, only one. And then we Okay. can all Yeah, great, great. तो कल हम क्या करते हैं? कल हम लोग मैं ना फिर भी तुम लोग के साथ सॉल्व एग्जाम्पल्स जो मैंने करके रखे हैं वो शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, ठीक है? एंड आप लोग कॉमनली एक सम डिसाइड करके रखो आपको कौन सा पूछना है थेवेनियन पे ग्रुप में, एंड देन वी विल डू दैट टुमारो. मेरे को पर क्विक डिसीजन चाहिए और वाला जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट जो भी रहेगा ना, सेंड मी थ्रू पर्सनल चैट कि मैम ये वाला सम आप कल करवाओ फॉर थेवेनियन, ठीक है? सो वंस दैट सम इज ओवर वी विल बी लर्निंग नॉर्टन्स थ्योरम. Okay. चलेगा? Yes. यस यस, आई विल टेक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन. चलेगा चलेगा. चलो, आई होप दिस कॉन्सेप्ट वाज अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी. Yes. Yes, ma'am. Okay, okay, chalo. Yes, ma'am. Have a nice day ahead. Take care. We'll meet tomorrow. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Yeah, bye. ma'am.